Hello बच्चों, welcome back. Today we are going to start a new chapter of class 10th, periodic classification of element. In this chapter we will study about how periodic table has been made and what are the efforts that has been done by our honorable scientists to prepare this periodic table. In the modern periodic table, there are so many elements that you are observed in modern periodic table, and the question arises in your mind that how this periodic table is prepared. So today we will clear all our doubt related to the modern periodic table, and we are going to start this chapter. If you are new to our channel, then please subscribe and like and on the bell icon. ठीक है, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा नए चैप्टर के बारे में एंड वी आर बैक. What do you mean by periodic classification of element? And lots of questions is arising in your mind that how many elements are there in the periodic table. So very important question is that in the periodic table there are 118 elements are there. 118 elements are there and it is very necessary to classify the elements. So that is why we are studying this chapter, periodic classification of element. If all the elements would have been brought together without any classification, then there will be no logic. There will be no logic and there will be very difficulty for us to study all the properties of the element. तो आज हम लोग बेटा सारे डाउट को क्लियर करने वाले हैं. वन शॉट वीडियो है, केवल दो ही पार्ट बनेंगे इस चैप्टर के और आप वॉच करते रहिए. ठीक है, सबसे पहले बात करने वाले हैं डॉबेरिनस ट्रेड के बारे में. क्लास 10 की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस में से ये है. तो डॉबेरिनस ट्रेड मींस पेयर ऑफ थ्री एलिमेंट. Trade stands for the pair of three elements, and according to the Doberinus has prepared certain trades. Doberinus से बेटा कुछ ट्रेड बना के दिए थे. ट्रेड का मतलब है थ्री एलिमेंट के पेयर बनाए थे और डॉबेरिनस का कहना यह था कि मिडिल एलिमेंट का जो मास होगा वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एवरेज एटॉमिक मास के इक्वल आने वाला है. यहाँ पर इन्होंने ट्रेड्स जो प्रिपेयर किए बेटा वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग किए और डॉबेरिनस के अकॉर्डिंग द एवरेज ऑफ द first and third element and the average of the first and third element. If you are considering the average of the atomic mass of the first and third element, that is we are considering lithium and potassium. Lithium is having atomic mass 7 and potassium is having atomic mass 39 and 7 plus 39 is equal to 46 upon 2. It will be equal to 23. आप इस बात को याद रखिए. डॉबेरिनस ने एक बात बताई थी कि अगर आप थ्री एलिमेंट के पेयर बनाते हैं तो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो एवरेज एटॉमिक मास है वो मिडिल वाले एलिमेंट के इक्वल आएगा. यानी अकॉर्डिंग टू द Doberinus, if you are preparing certain traits then the average atomic mass of first and third element is equal to the middle element atomic mass. यानी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का जो ट्रेड बना है, पहला ट्रेड बना था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का. लिथियम और पोटेशियम का जो एटॉमिक मास होने वाला है वो सोडियम के इक्वल होने वाला है. सेकंड ट्रेड प्रिपेयर किया उन्होंने कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम. अगर आप कैल्शियम और बेरियम के मास को ऐड करेंगे बेटा, कैल्शियम का मास है 40, बेरियम का मास है 137. 40 plus 137 is equal to 177 और 177 upon 2 will be equal to 88.5, which is approximately equal to the strontium. And we can say according to the Doberinus, I am repeating again, the average atomic mass of first and third element is equal to the mass of the middle element. तो मिडिल वाले एलिमेंट का जो मास होने वाला है वो फर्स्ट और थर्ड के एवरेज के बराबर आता है. ठीक है, डॉबेरिनस ने ट्रेड बना तो दिए लेकिन एट दैट टाइम he could not prepare some more trades. उस समय सारे एलिमेंट के ट्रेड प्रिपेयर नहीं हुए थे. तो this concept can be applied only up to certain limit of element. The first limitation of Doberinus trade is that this concept cannot be applied to whole of the periodic table, because if you are going to apply this concept to other element, then this concept doesn't valid for all the trades or all the element. तो बेटा ये ट्रेड सारे एलिमेंट पर वैलिड नहीं है, केवल कुछ ही पेयर है जिन पर ये ट्रेड वैलिड होता है. तो डॉबेरिनस ट्रेड की पहली लिमिटेशन या कह सकते लिमिटेशन यही है कि आप सारे एलिमेंट पर इस ट्रेड को अप्लाई नहीं कर सकते. इस बात को ध्यान रखिएगा. सेकंड ट्रेड आता है आपका न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पर हम लोग आते हैं और न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का क्या कहना है.
अकॉर्डिंग टू द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, देखिए ऑक्टेव्स का मतलब होता है 8। तो न्यूलैंड का कहना यह था कि अगर आपने एलिमेंट को एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया, इफ द एलिमेंट आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि बेटा जिसका एटॉमिक मास कम होगा उसे आप पहले रखेंगे। लाइक हाइड्रोजन हैज वेरी लेस एटॉमिक मास, तो हाइड्रोजन को आप पहले रखेंगे और उसके बाद आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में मास को लगाते चले जाएंगे। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का कहना यह है कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, देन you will observe that every eighth element will have similar property to the first one. हर eighth element की property first element के साथ मैच करेगी। Like in music, you are observing that सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर से रिपीट हो जाएगा भाई। तो म्यूजिकल रिदम के अकॉर्डिंगली every eighth element या every eighth element will have the similar property to the first one। तो बेटा न्यूलैंड का कहना यह है कि अगर आपने एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया तो हर एर्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के साथ मैच करेगी। क्राइटेरिया पीरियोडिक टेबल बनाने का था, लेकिन न्यूलैंड ने अपनी कोशिश जारी रखी और न्यूलैंड ने अपने अकॉर्डिंग जो टेबल बना के दी थी वो टेबल आपके सामने। न्यूलैंड ने बताया था कि इफ यू विल अरेंज एन एलिमेंट, न्यूलैंड के टाइम पे एक तो ध्यान रखिएगा 56 एलिमेंट होते, और न्यूलैंड ने जब एलिमेंट्स को अरेंज किया था तो एलिमेंट को एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया और एवरी एर्थ एलिमेंट विल हैव द सिमिलर प्रॉपर्टी टू द फर्स्ट वन। हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी किसके साथ मैच कर रही थी बच्चों? किसके साथ मैच कर रही थी? फर्स्ट एलिमेंट के साथ। लाइक वी कैन से दैट लिथियम का आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, लिथियम का जो एर्थ एलिमेंट है वो है सोडियम, सोडियम का जो एर्थ एलिमेंट है वो है पोटेशियम। ठीक है, तो हर एर्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के साथ मैच करने वाली है। ये बात न्यूलैंड ने बताई थी। जिस समय में न्यूलैंड ने अपनी टेबल बना के दी थी उस समय ओनली कितने एलिमेंट नोन थे? 56। ओनली 56 एलिमेंट वर नोन एट द टाइम ऑफ द न्यूलैंड, बट दिस कांसेप्ट कैन बी एप्लीकेबल ओनली अप टू द कैल्शियम। ये कांसेप्ट केवल कैल्शियम तक वैलिड है। तो न्यूलैंड के सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि न्यूलैंड का जो कांसेप्ट है वो सारे एलिमेंट पर वैलिड नहीं है, and it can be applied up to only up to calcium. After calcium, if you are observing that the property of calcium is similar to the zinc, that is not possible. After calcium, this law is failed. So limitation of Newland law of octaves is that this concept cannot be applied to all the periodic table, to all the elements, because after calcium, the property of eighth element doesn't match with the first one. अच्छा, हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी जब मैच कर रही थी ना बेटा फर्स्ट वन के साथ, तो उनकी प्रॉपर्टीज यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। लिथियम और सोडियम मेटल होते हैं, काफी रिएक्टिव मेटल होते हैं, और इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात आपको पता है। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि न्यूलैंड का कहना क्या था? न्यूलैंड ने ही बताया था हमको कि इफ यू आर अरेंजिंग द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, then every eighth element will have the similar property to the first one. And what is the limitation? Limitation is that this concept cannot be applicable to all the periodic table. हम पूरी periodic table पर अप्लाई नहीं कर सकते। कहाँ तक अप्लाई कर सकते हैं? कैल्शियम तक। ठीक है, तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पढ़ लिया आपने, डॉबरिनर्स का ट्रेड पढ़ लिया। देखिए डॉबरिनर्स का ट्रेड भी सारे एलिमेंट पर अप्लाई नहीं होता है। Now we are observing that scientists are trying to make the periodic table, but all the concept is not correct. Now we are going to discuss about Mendeleev periodic table. A very interesting concept is that according to the Mendeleev, atomic mass is the most important fundamental property for the periodic table. He created his periodic table on the basis of their atomic mass. बेटा इन लोगों ने, मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई उन्होंने एटॉमिक मास को बड़ा इंपॉर्टेंस दिया। उन्होंने जो अपनी पीरियोडिक टेबल लगाई थी वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग लगाई थी। According to the Mendeleev, atomic mass is the most important fundamental property for creating the periodic table, and he says that the physical and chemical properties of the element are the periodic function of atomic mass. इन्होंने ये बताया था कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी एलिमेंट की, वो किस पर डिपेंड करती है? एटॉमिक मास पर डिपेंड करती है। देखिए मेंडलीव के टाइम पे 63 एलिमेंट होते हैं, मेंडलीव के टाइम पे 63 एलिमेंट होते हैं, और न्यूलैंड के टाइम पे 56। तो एलिमेंट की डिस्कवरी होती जा रही है। मेंडलीव ने बताया कि 63 एलिमेंट बेटर होते हैं एट दैट टाइम,
and according to the Mendeleev, if elements are arranged in the basis of their atomic mass, then periodic table can be created, and that periodic table will be depending upon only the atomic mass. आप अगर मेंडलीव की टेबल को साथ ध्यान से देखेंगे तो मेंडलीव की टेबल में आप एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग देख पाएंगे और बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक वे में अरेंज किया था इन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पर। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बहुत सारे अचीवमेंट हैं। देखिए सबसे पहला अचीवमेंट यही है कि इन्होंने सिस्टमैटिक स्टडी कर दी थी एलिमेंट्स की, यानी एलिमेंट्स कैन बी सिस्टमैटिकली स्टडीड बाय मेंडलीव by using its periodic table, because this periodic table consists of atomic mass and that atomic mass creates a historic achievement in the periodic table. तो मेंडलीव की जो periodic table है मैं बार-बार बताऊंगा आपको कि atomic mass पर डिपेंड करती है और atomic mass के अकॉर्डिंग उन्होंने अरेंज किया था, तो आप सिस्टमैटिक स्टडी कर पाओगे एलिमेंट्स की। फॉर एग्जांपल इन अ स्कूल it is very necessary to divide the students according to the class, according to the section wise. If you will consider all the students gathered together and you want to provide them the proper education, then it is not possible. तो बेटा जैसे जिस तरीके से स्कूल के स्टूडेंट्स को क्लासिफाई किया गया है ना क्लास इन सेक्शन के अकॉर्डिंग, मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स फॉर द मेन अचीवमेंट ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल। आप सारे एलिमेंट को एक साथ रख के स्टडी नहीं कर सकते उनकी प्रॉपर्टीज को, तो सिस्टमैटिक स्टडी किसने अचीव की? मेंडलीव ने। देखिए मेंडलीव ने कई एलिमेंट को प्रेडिक्ट कर दिया था। उन्होंने एक वर्ड यूज किया था एका, एका वर्ड का यूज किया था बेटा। एका वर्ड का यूज इसलिए किया था, उन्हें पता था कि बाद में कुछ एलिमेंट्स की डिस्कवरी होगी जिनकी प्रॉपर्टीज मैच करेंगी। तो मेंडलीव की सेकंड अचीवमेंट ये है कि प्रेडिक्शन ऑफ द न्यू एलिमेंट। आप मेंडलीव के अचीवमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो मेंडलीव ने बहुत सारे अचीवमेंट दिए हैं। तो मेंडलीव का जो सेकंड अचीवमेंट है वो हमारा ये है कि प्रेडिक्शन ऑफ द न्यू एलिमेंट। आप देख सकते हैं इन्होंने एक संस्कृत वर्ड का यूज किया है एका का, और मेंडलीव ने ये बताया था कि सिलिकॉन नहीं, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम उस टाइम पर नोन नहीं थे मेंडलीव के टाइम पे, लेकिन उन्होंने उनका नाम रख दिया था बेटा एका बोरॉन, एका बोरॉन, एका सिलिकॉन। He know that after this some element will be discovered and he uses the Sanskrit word that is known as eka. इन्होंने एका वर्ड का यूज किया बेटा, और एका वर्ड का यूज करने के बाद इन्होंने ये बताया था कि इस एलिमेंट की डिस्कवरी होगी बाद में। तो सेकंड अचीवमेंट था प्रेडिक्शन ऑफ द न्यू एलिमेंट, एंड स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम वर नॉट नोन दैट टाइम, एंड मेंडलीव हैज ऑलरेडी नेम्ड एका बोरॉन, एका सिलिकॉन and eka aluminium because he know that after that element will be discovered. And some of the greatest achievement of the Mendeleev is that placement of the noble gases. देखिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है इनका प्रेडिक्शन ऑफ द नोबल गैसेस। इन्होंने नोबल गैसेस को प्रेडिक्ट कर दिया था। देखिए नोबल गैस की डिस्कवरी काफी बाद में हुई है। नोबल गैसेस बेटा वो होती है जो किसी के भी साथ रिएक्ट नहीं करती। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो ग्रुप नंबर 18 को कहते हैं नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में ही लेफ्ट सम गैप इन द पीरियोडिक टेबल, इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में गैप छोड़ा था, और उस गैप को अगर आप देखोगे इमेजेस में तो आप देखेंगे कि ये मेंडलीव के अचीवमेंट में आता है। उन्हें पता था बाद में ऐसे एलिमेंट की डिस्कवरी होगी, और उन पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब नहीं करने की जगह पे इन गैसेस को रख दिया। तो प्रेडिक्शन ऑफ द नोबल गैसेस वर द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ द मेंडलीव, एंड द फोर्थ अचीवमेंट इज द करेक्शन ऑफ द एटॉमिक मास। इन्होंने एटॉमिक मास को भी बेटा करेक्ट किया था। देखिए फोर्थ अचीवमेंट है करेक्शन ऑफ द एटॉमिक मास। इन्होंने बेरिलियम के एटॉमिक मास को करेक्ट किया था। बेटा बेरिलियम का जो एटॉमिक मास था ना वो 13.5 हुआ करता था। इन्होंने बेरिलियम के एटॉमिक मास को करेक्ट करके बेरिलियम के जो एटॉमिक मास है उसको ठीक कर दिया इन्होंने, और बेरिलियम के एटॉमिक मास को इन्होंने ठीक करने के बाद ये बताया था कि बेरिलियम का जो एटॉमिक मास है वो 13.5 हुआ करता था, एंड 13.5 को इन्होंने ठीक कर दिया 9 से। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि बेरिलियम का जो एटॉमिक मास है वो ठीक कर दिया है इन्होंने। पहले 13.5 हुआ करता था, अब 9 होता है। ठीक है, तो ये सारे अचीवमेंट आएंगे मेंडलीव के। ड्रॉबैक भी तो है मेंडलीव के, क्या क्या ड्रॉबैक है मेंडलीव के, क्या क्या ड्रॉबैक हैं? ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। देखिए ड्रॉबैक्स में भी आएंगे। मेंडलीव ने सारी बातें तो सही नहीं बता दी थी ना, सारी बातें तो सही नहीं बता दी थी ना, कुछ ना कुछ तो कमी थी ना। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के क्या क्या ड्रॉबैक है? देखिए सबसे पहला ड्रॉबैक हाइड्रोजन की पोजीशन को लेकर के है। द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय मेंडलीव।
देखिए हाइड्रोजन की पोजीशन अभी तक वैसे भी कोई नहीं बता पाया, तो पहला ड्रॉबैक इनका ये है, द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय मेंडलीव। सेकंड ड्रॉबैक इज दैट देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स व्हिच हैव बीन ग्रुप्ड टुगेदर। उन्होंने एटॉमिक मास के हिसाब से लगाया ना, तो जिसका एटॉमिक मास कम होगा वो पहले आएगा, और जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा वो कैसे आएगा बेटा, वो आएगा बाद में। तो सबसे पहला ड्रॉबैक इनका ये था, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की पोजीशन को ये नहीं बता पाए थे। ठीक है, तो लिमिटेशंस में हमने सबसे पहले बात की पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं बता पाए थे बेटा ये, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्रॉपर्टीज बहुत सारे ग्रुप के साथ मैच करती है। देखिए मेंडलीव के टाइम पे 8 ग्रुप थे, 6 पीरियड थे, यानी 8 ग्रुप में उन्होंने डिवाइड किया था और 6 पीरियड वाइज डिवाइड किया था। 8 तो ग्रुप थे और 6 पीरियड थे, और मेंडलीव के टाइम में 63 एलिमेंट होते थे। और मेंडलीव की पहली ड्रॉबैक ये है कि हाइड्रोजन की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं पाया, क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज ग्रुप 1 के साथ भी मैच कर रही थी और भी ग्रुप में जिनके साथ मैच कर रही थी। तो किस ग्रुप में रखा जाए, हाइड्रोजन की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सेकंड ड्रॉबैक ये है कि आइसोटोप की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि आइसोटोप बेटा वो होते हैं जिनका एटॉमिक मास कैसा होता है, सेम होता है। एटॉमिक मास कैसा होता है, सेम होता है। हाँ, आइसोटोप का एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास सेम होता है। बताइए आप, कौन बताएगा मेरे को कि एटॉमिक मास सेम होता है? आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, सेम होता है। वेरी गुड। और एटॉमिक मास कैसा होता है, डिफरेंट होता है। अच्छा, अगर मास डिफरेंट है तो इस टेबल के अकॉर्डिंग आप अलग अलग लगाएंगे, लेकिन आपको अलग अलग थोड़ी ना लगाना है, क्योंकि इनके एटॉमिक मास कैसे हैं, डिफरेंट है। तो मेंडलीव ने एलिमेंट को अलग अलग कर दिया भैया मास के हिसाब से, लेकिन वो है तो एक ही एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म। तो आइसोटोप की पोजीशन नहीं बता पाए थे। आइसोटोप की पोजीशन क्यों नहीं बता पाए, क्योंकि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग लगाया। और बहुत सारे ऐसे एनोमलीज हैं, एनोमलीज माने क्या कह सकते हैं कि जिन्हें रखना तो उन्हें सेम, मतलब उनके मास के अकॉर्डिंग ही अरेंज नहीं, उनका कांसेप्ट ही फेल हो गया। क्योंकि आर्गन को उन्होंने रख दिया पहले पोटेशियम से, रखना था पोटेशियम के बाद। कोबाल्ट को फिर से उन्होंने क्या रख दिया, पहले रख दिया निकल के, लेकिन रखना था निकल के बाद, क्योंकि एटॉमिक मास जिसका काम है उसे कैसे रखना है, पहले रखना है। हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं बता पाए क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं बहुत सारे ग्रुप के साथ। आइसोटोप की पोजीशन नहीं बता पाए क्योंकि एटॉमिक मास वहां पर डिफरेंट होता है, उनको डिफरेंट रख दिया उन्होंने, रखना था उन्हें एक ही ग्रुप में। ठीक है, बहुत सारे सेम एलिमेंट हैं जिन्हें आपने अलग अलग ग्रुप में रख दिया, कॉपर और मरकरी को डिफरेंट रख दिया। तो बहुत सारे एनोमलीज हैं, बहुत सारे ड्रॉबैक हैं। इसके अलावा बहुत सारे डिसिमिलर एलिमेंट हैं जिन्हें एक साथ रख दिया, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। They have been grouped together on the basis of their atomic mass, but they have been separated. इन्हें सेपरेट करना चाहिए था। तो बेटा बहुत सारे ड्रॉबैक हैं। पीरियोडिसिटी को नहीं बता पाया कि हर एक पीरियोडिसिटी क्या होती है, हर एक रेगुलर इंटरवल के बाद सिमिलैरिटी आती है प्रॉपर्टीज में। देयर इज अ रेगुलर, इफ यू आर गोइंग फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप, तो प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी आती है, उसको नहीं समझा पाए। और बहुत सारे मेटल और नॉन मेटल को ये सेपरेट नहीं कर पाए, इन्होंने कंबाइन कर दिया। दे हैव ग्रुप्ड टुगेदर मेटल एंड नॉन मेटल। तो बेटा ड्रॉबैक की बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला ड्रॉबैक है इनका ये कि हाइड्रोजन की पोजीशन को नहीं बता पाए थे ये। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि ये आइसोटोप की पोजीशन को नहीं बता पाया, क्योंकि आइसोटोप के हिसाब से एटॉमिक नंबर बेटा सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, प्रॉपर्टीज भी सेम होनी चाहिए, मास ही तो डिफरेंट है। अगर मास डिफरेंट है तो उन्होंने मास के हिसाब से अलग अलग रख दिया, रखना था उन्हें सेम। अगला ये है कि बहुत सारे एनोमैलस माने डिफरेंट, क्या कह सकते हैं, अपवाद कह सकते हैं, अपवाद। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट थे जिन्हें उन्होंने गलत पुट कर दिया मास के अकॉर्डिंग, जैसे आर्गन और पोटेशियम को ले लीजिए, कोबाल्ट और निकल को ले लीजिए। बहुत सारे सेम ग्रुप को डिफरेंट ग्रुप के साथ रख दिया इन्होंने। भैया सेम ग्रुप को डिफरेंट ग्रुप के साथ क्यों रख दिया? बहुत सारे डिसिमिलर एलिमेंट थे जिनकी प्रॉपर्टीज मैच ही नहीं कर रही थी, उनको भी सेम रख दिया। तो ये सारे ड्रॉबैक थे मेंडलीव के। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो वीडियो बनती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।